WhatsApp। خدا کے جلالی اور قدوس نام میں آپ تمام ویورز کی خدمت میں سلام قبول ہو۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں گریس ٹیلی ویژن پر پریئر ٹائم سیگمنٹ میں یہ موقع دیا تاکہ ہم اس کے نام کی جے کار کر سکیں، اس کے نام کی پرستش کر سکیں اور اسی طرح اپنی عرض منتیں خدا کی حضوری میں رکھ سکیں، اور سب سے بڑی بات کہ ہم خدا کا کلام اس کے بندہ کے وسیلہ سے سنیں، اور یقیناً ہم سب آج کے سیگمنٹ کے وسیلہ سے جو ہے وہ برکت پائیں گے۔ اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر، خدا کے خادم پاسٹر طارق خالد صاحب جن کا تعلق FGA سے ہے اور گرین ٹاؤن میں خدا جن کو بڑی کثرت کے ساتھ اپنے جلال کے لیے، بزرگی کے لیے استعمال کر رہا ہے، سو آج ہم ان کو اپنے اس پریئر ٹائم سیگمنٹ میں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں کہ آج یہ ہمارے درمیان تشریف لائے۔ اور اسی طرح ان کی جو مسز شمائلہ طارق، ان کے لیے بھی میں خدا ان کی شکر گزار میں تشریف لائی ہیں، اور یقیناً خدا کا آج کا یہ دن ہم سب کے لیے بابرکت ثابت ہوگا۔ اور اسی طرح میں گریس ٹیلی ویژن کی جو ٹیم ہے، ایلڈر شفیق صاحب ہیں، ایلڈر لیاقت صاحب، مسز عارف جی کوکس، ایلڈر یعقوب کیلا صاحب جو ہے وہ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، تو ہم ان کو بھی جو ہے وہ پرجوش انداز سے ویلکم کرتے ہیں، اور یقیناً آج کے سیگمنٹ کے وسیلہ سے ویورز ہم سب جو ہے وہ برکت پائیں گے۔ سو ابھی ہم سب جھکیں گے، اس سارے سیگمنٹ کو خداوند کی حضوری میں رکھیں گے کہ خداوند جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک ہمارا ہادی اور رہنما بنے، اور اسی طرح ہمارا پرستش کرنا، ہمارا دعا کرنا، ہمارا کلام کا سننا اور سنانا جو ہے وہ خداوند کو پسند آئے۔ اس سارے معاملات میں جو ہے وہ خداوند ہماری رہنمائی کرے، کیونکہ خداوند کا تخت لگ چکا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ خداوند ہمارے درمیان جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ابھی ہم سب جھکیں گے، سو میں درخواست کرتا ہوں مسز عارف جو کوکر صاحبہ سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں۔ ہمارے عزیز اپنی باپ پیارے خدا، دل اور دل کی گہرائیوں سے پیارے خدا جی لاکھوں بار تیرا شکر ادا کرتے ہیں پیارے خدا، تو نے ہمیں زندہ اور قائم رکھا ہے پیارے خدا، کہ ہم سب مل کر تیرا پاک نام لے ہیں پیارے خدا، تیرا پاک کلام پڑھے ہیں پیارے خدا، کہ باخیریت سے پیارے خدا ادھر پہنچے ہیں پیارے خدا، تو نے ان کی رہنمائی کی ہے پیارے خدا، اسی طرح جاتے وقت ان کے ساتھ ہونا پیارے خدا، آج کے سارے پیارے خدا پروگرام کے لیے دعا کرتے ہیں پیارے خدا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ ہونا پیارے خدا، پرستش میں ہمارے ساتھ ہونا، کلام میں ہمارے ساتھ ہونا پیارے خدا، کوئی بھی شیطانی قوت ادھر آنے نہ پائے، اگر آئے جل کے نیست و نبود ہو جائے پیارے خدا، تمام عزت اور جلال پیارے خدا آپ کے نام کو دیتے ہیں پیارے خدا، ہم کلام کی گہرائیوں کے سمجھے ہیں پیارے خدا، دل لگا کر کلام سنے، ایسا نہ کہ ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے پیارے خدا، آج کی یہ میٹنگ باعث برکت ہو ہے پیارے خدا، اور اس سے ہم ہزاروں برکتیں پائے ہیں پیارے خدا، تیرے نام کی گواہیاں ہوں پیارے خدا، جتنے ساتھ تیرے آگے جھکے ایک ایک کو چھونا اور بلیس کرنا پیارے خدا، سب کے ساتھ ہونا پیارے خدا، دعا کو سننا قبول کرنا، سب کچھ مانگتی ہوں آپ کے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ ابلیس جو شیر ببر کی مانند داڑتا پھرتا ہے، جسے غافل پاتا ہے کھاڑ کھاتا ہے، اور یقیناً ہمارے جو مینورٹی کے لوگ ہیں ان میں بہت سی پرابلم، بہت سے مسائل پائے جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات بے روزگاری جو ہے وہ عام ہے، بہت سارے نوجوان جو پڑھ لکھ جاتے ہیں اور اس طرح سے ان کو روزگار نہیں ملتا، اور خاص طور پہ ہم ان بہنوں کو بھی خداوند کی حضوری میں لائیں گے، خاص طور پہ بہن نورین کو اور اسی طرح بہن شازیہ کو جن کے اولاد نہیں ہے، اور بھی جو دوسری بہنیں جن کے اولاد نہیں ہیں ان کو بھی ہم خداوند کی حضوری میں رکھیں گے کہ خداوند اپنا رحم، اپنا فضل جو ہے وہ ان پر نازل فرمائے، جس طرح خداوند نے حنا پر اپنے کرم کی نگاہ کی اور اس کو بیٹا جو ہے وہ بزرگ سیمول کی صورت میں جو ہے وہ عطا کیا، جو خداوند کی خدمت کرتا۔ تو ان تمام بہنوں کو جن کو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے خداوند کی حضوری میں رکھیں گے، اور بے روزگار نوجوانوں کو خداوند کی حضوری میں رکھیں گے تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ خوشحالی کی زندگی بسر کریں۔ تو ابھی ہم سب جھکیں گے، ہمارے درمیان مسز شمائلہ طارق صاحبہ موجود ہیں، وہ دعا میں رہنمائی کریں۔
इन बैठी जिंदगियों के लिए खुदा तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। खुदा बाप मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ यीशु नासरी। खुदा जिस मकसद के लिए हम तेरे आगे झुके हैं, खुदा तो हमारी दुआओं को सुन और कबूल करना। खुदा पाक खुदा हमारी आस और उम्मीद तुझ पर है यीशु नासरी। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा तेरे आगे मिन्नत करती हूँ बेरोजगार भाइयों के लिए खुदा जिनके पास कारोबार नहीं है यीशु नासरी। खुदा तू आसमान खोल कर बरकतें अनायत कर यीशु नासरी। तेरा फजल हमारे लिए काफी है। आसमान खुल जाए खुदा, तमाम लोग खुदा भर जाए यीशु नासरी। तू हमारा उम्मीद है, तू हमारी उम्मीद है, तू हमारी जिंदा उम्मीद है। हम तेरा शुक्र करते हैं मसीह यीशु नासरी। तेरे आगे मिन्नत करती हूँ उन बहनों के लिए खुदा उन बहनों के लिए जिनके पास औलाद नहीं है खुदा मिन्नत करते हैं खुदा जिस तरह तूने हन्ना को बाबरकत किया, सारा को बाबरकत किया खुदा तू उसी तरह उन बहनों को खुदा बाबरकत कर। बेटे जैसी बेटियों जैसी नेमत से नवाज खुदा तू वाकई भला खुदा है। तू हमें कभी नहीं छोड़ता खुदा तू हमें हमेशा थामे रखता है खुदा। हमें इस लायक कर खुदा हम तेरे सुंदर चरणों में झुके रहे खुदा। इसी तरह मिन्नत करती हूँ हम सब के साथ हो, बड़ी बरकत दे मांगते हैं मसीह के नाम से आमीन आमीन। अभी वक्त है कि हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है वो दुआ करें। बेशक इस मुल्क में जो है वो हम रहते हैं, बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना है, तो भी हम इस मुल्क पाकिस्तान को, इसके सारे इंतज़ामिया को, लेजिस्लेशन अदारों को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे कि जो भी यहाँ पे फैसला जात हों, जो भी कवानीन नाफिज किए जाएँ, जो भी पॉलिसियाँ तरतीब दी जाएँ वो खुदावंद की तरफ से हों और इस मुल्क पाकिस्तान में खुदावंद तेरे लोग खुशहाली की ज़िंदगी बसर करें। हम सब झुकेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ एल्डर शफीक साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। जो तूने खुदा में बख्श दी ताकि हम सब मिल बैठ कर खुदा इस मीटिंग में खुदा शामिल हो सकें और तेरे नाम को इज्जत व जलाल दे, इज्जत व जलाल मिले। जैसा कि खुदा तेरा बंदा है खुदा आज जो हमारा इस ग्रे चैनल का चेयरमैन है खुदा, इस ग्रे चैनल को चला रहा है खुदा और तेरी अंजील की मनाती है खुदा दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा रहा है। मैं चाहता हूँ कि खुदा तू अपना आसमान अपने बंदा पर खोल दे यीशु, अपने कलाम के मुकाश पे था यीशु और रूह सच्चाई में चलने की और कुव्वत दे यीशु, ताकि खुदा तेरे लोग है खुदा तेरे गला में शरीक हो सकें और तेरे नाम को इज्जत व जलाल दे सकें यीशु। तू अपने बंदा की बड़ी रहनुमाई कर, हर तरह के इब्लीसी हमलों से कुफ्तों से बचाए रखना ताकि तेरा नाम जलाल पाए यीशु। और इसी तरह खुदा मैं अपने प्यारे पाकिस्तान मुल्क के लिए मैं सलामती और बरकत की दुआ चाहती हूँ यीशु। और तेरे पाक कलाम में लिखा है कि जिस मुल्क में तुम रहते हो उस मुल्क के लिए सलामती और बरकत की दुआ चाहती हूँ, जिस शहर में रहते हो उसके लिए सलामती और बरकत की दुआ चाहती हूँ। यीशु हम तेरे कहने के मुताबिक, तेरे कलाम के कौल के मुताबिक इस मुल्क के लिए सलामती और बरकत की दुआ चाहते हैं। जबकि खुदा इस मुल्क में कोरोना वायरस फैल रहा है, महंगाई है, लोग पीस रहे हैं खुदा, लोग है खुदा परेशान है खुदा, तू हर एक की हालत को जानता है यीशु। और है खुदा ये महंगाई, ये कोरोना वायरस तेरे बेटे यीशु के नाम से चल रहा है ताकि तेरा नाम जलाल पाए और तेरे लोग खुशहाल हो खुदा ऐ जलाल के बड़े खुदा। और इसी तरह खुदा वज़ीर आज़म के लिए, सदर के लिए खुदा, पूरी कबीना के लिए मैं दुआ को यीशु राजा तुम्हें एक नया दिल दे, नई रूह दे यीशु राजा, ताकि खुदा इस मुल्क को खूबसूरत चला सकें। आर्मी के लिए, रेंजर के लिए खुदा, पुलिस के लिए मैं सलामती और बरकत की दुआ चाहते हैं खुदा, तो इन पर फजल हाथ बढ़ा यीशु राजा, ताकि इसी तरह खुदा तेरे मुल्क की हिफाजत करें और रहनुमाई करें यीशु राजा, ताकि तेरे नाम को इज्जत व जलाल मिले यीशु राजा। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। और इसी तरह खुदा बाकी वक्त तक हमारा आदि और रहनुमा करना, यीशु के नाम से ये सब कुछ मांग लेता हूँ।
कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों की है। हमारे दरमियान प्यारी बेटी मुनाहिल आरफ जो 23 ज़बूर जो है वो कलाम मुक़द्दस में से पढ़ें। मेरी तरफ से सलाम। मैं आपका 23 ज़बूर सुनाऊंगी। खुदावन मेरा छुपाना है, मुझे कभी ना होगी, वो मुझे हरी हरी जगहों में रखता है, मेरी जान का बहार करता है, मुझे वो रात के चश्मों के पास ले जाता है, मेरी जान का बहार करता है, क्योंकि उसने अपने नाम की खातिर मुझे सकातत की राहों पर ले जाते हैं, बल्कि खुआ मौत की वादी के साए के साथ मेरे गुजरा होगा। मैं किसी भी रास्ते में डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी आशा तेरी राठी से मुझे तसल्ली मिलती है कि तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान चाहता है। तूने मेरे सिर पर तेल मरा है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत हमेशा मेरे साथ रहेगी और मैं खुदावन के घर में सुकूनत करूँगा। साल 8 बाब में जो मरहूम है उसकी अगर 34 और 35 आयत पढ़ें तो लिखा हुआ है, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज़ मेरे फाटकों पर इंतज़ार करता है और मेरे दरवाज़ों की चौखटों पर ठहरा रहता है, क्योंकि जो मुझको पाता है ज़िंदगी पाता है और वो खुदा का मकबूल होगा। अभी वक्त है कि हम उन लोगों को जो परेशान हाल हैं इस मुल्क पाकिस्तान में, जो मिनॉरिटी के लोग और ख़ास तौर पे माशरे में जो पिसे हुए लोग हैं, आए दिन हम बेटियों के हवाला से जुल्म और सितम की दास्तानें सुनते हैं और इसके अलावा एक माइंडसेट बना हुआ है जो गुंडागर्द अनासर हैं, वो ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो पिसे हुए हैं, उन पर जो है वो जुल्म और तशद्दुद करते हैं। तो इन तमाम फैमिलियों को, ख़ानदानों को हम खुदावन की हजूरी में रखेंगे कि खुदावन इनकी सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो हल करे, इनमें जुर्रत दलेरी पैदा करे और ख़ास तौर पे जो है वो ऐसे अदारों के लिए भी, बेशक मैं ये समझता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान में ऐसे कवानीन बने हुए हैं लेकिन इन पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं करवाई जाती। तो इस सारे मामलात को हम खुदावन की हजूरी में रखेंगे, उन ख़ानदानों को भी जो है वो खुदावन की हजूरी में रखेंगे जो फैसलाबाद में, लाहौर में और इसी तरह कराची में वाक़यात हो रहे हैं, उनको खुदावन की हजूरी में रखेंगे। हमारे दरमियान एल्डर लियाकत साहब मौजूद हैं, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। ज़मीन और आसमान के खालिक व मालिक खुदावंद पाक खुदा, हम तुझे सिजदा करते हैं, तो कायनात का खालिक व मालिक है। पाक खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने आज का दिन हमारी ज़िंदगी बख्शा कि हम खुदावंद तेरे हाज़ुर में आकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। ऐ पाक खुदा, इस वक्त हम सब के साथ हो, जितनी जानें तेरे हजूर में आ चुकी हैं, खुदा तू सबको नामना बरकत दे और अपने जलाल को इस्तेमाल कर। पाक खुदा, उन लोगों के लिए खुदा दुआ करता हूँ पाक खुदा, जो कि खुदा इस मुल्क में पाक खुदा पिसे हुए लोग हैं, यानी कि सताए हुए लोग हैं पाक खुदा, जिनकी हुकूमत पाक खुदा नहीं सुन रहा। ऐ पाक खुदा, दुआ करते हैं जो भी खुदा उनके लिए कानून बने हुए हैं पाक खुदा, मुल्क पाकिस्तान के कानून खुदा उनके लिए बायस से बरकत बने। जो पिछले लोग हैं उठ खड़े हों और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। ऐ पाक खुदा, दुआ करते हैं उन लोगों के लिए, उन बेटियों के लिए, बेटों के लिए खुदा पाक खुदा,
जो कि खुदा गैर पाक खुदा मस्जिद में जाते हैं, पाक खुदा उनके लिए दुआ करते हैं, अपने कलाम के मुताबिक अपने ईमान में मजबूत रह सकें और खुदा मसीह यीशु के बेटी और बेटे कहला सकें और अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। ऐ खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो पाक खुदा तुझसे दूर हैं, उनको खुदावंद अपने कलाम की, अपने नाम की भूख और प्यास बख्श दे, वो तेरे नज़दीक आए, तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। ऐ पाक खुदा जितने भी लोग खुदावंद यीशु बादशाह मुल्क पाकिस्तान के कानून को बनाते हैं, मसीही हैं, मुस्लिम हैं, ऐ खुदा मैं दुआ करता हूँ अच्छा कानून बनाए, इस मुल्क को अच्छे तरीके से चला सकें और खुदा में ये मुल्क आगे बढ़ सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। पाक खुदा उनके पाकिस्तान के खुदा उन लीडरों के लिए दुआ करते हैं। ऐ पाक खुदा जो कि पाक यीशु बादशाह इस मुल्क को चला रहे हैं, यानी कि वजीर आजम, सदर, वजीर आला और सारी कबीना के लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। पाक खुदा दुआ करता हूँ खुदा मसीह लोगों के लिए जो खादिम दीन हैं, जो कि खुदा इस मुल्क में तेरे नाम की खुदा आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत और ताकत करते हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। जितने मसीह चैनल चल रहे हैं उनके लिए भी तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहते हैं। मैं दुआ करता हूँ खुदा ऐसे चैनल के लिए जो ग्रेस चैनल है पाक खुदा जिसका खुदा चेयरमैन आर.जे. खोखर साहब हैं, इनके लिए, इनके घराने के लिए, इनकी पूरी टीम के लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। जो भी इसमें से इस चैनल से कलाम पेश होता है, दुआएं मांगी जाती हैं, ऐ खुदा तेरे लोगों के लिए बायस से बरकत बने और तेरा कलाम कोने कोने में फैले और खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। आज की खुदा प्रेयर मीटिंग हम सब के लिए बायस से बरकत बने, मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान के मसीह लोगों के लिए बायस से बरकत बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर तारक खालद साहब जिनका ताल्लुक़ FGA चर्च से है, खुदा के खादम, मैं उनको वेलकम करता हूँ और अभी मैं दावत देता हूँ एल्डर शफीक साहब सामने आएंगे और मौजूद मेहमान को हार बनाएंगे। मैं अपने अगले मौजूद मेहमान मुबशर इंजील यकूब कैला साहब को दावत दूंगा कि वो सामने तशरीफ़ लाएँ और एल्डर लियाकत साहब जो है वो इनको हार पहनाएँ। तारक साहिबा से कि वो भी तशरीफ़ लाएंगी और मिसेज आर.जे. खोखर साहिबा इनको हार पहनाएँ। हम खुदा का ज़िंदा पाक कलाम सुने और यकीनन खुदा का ज़िंदा पाक कलाम आग की मानिद है, जब वो बरसता है तो ज़िंदगियों में से तमाम किस्म की नाराज़गी को, नापाकी को जलाकर भस्म कर देता है। और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज हमारे दरमियान खुदा के सूरमा पास्टर तारक खालद साहब जो हैं वो मौजूद हैं। सो इससे पहले कि मैं उनको जो है वो दावत दूँ, हम सब झुकेंगे। हमारे दरमियान मुबशर इंजील यकूब कैला साहब मौजूद हैं, सो वो पाक कलाम की तैयारी के लिए दुआ करेंगे। खुदा रूह कुदस के नाम में पाक खुदा हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं कि तू हमारा हर रोज़ का खुदा है। खुदावंद यीशु मसीह तू ही ज़िंदगी और ज़िंदगी की बातें खुदावंद यीशु मसीह तेरे पास है। तू गफूर और रहीम है, हय्युल क़य्यूम है, सादिकुल कौल है। खुदावंद यीशु मसीह तू जिंदा है, मुर्दों में से जी उठा है, अब तलवार जिंदा रहेगा। तू मौत और कब्र पर फातेह खुदावंद है। तू ही हमारा मुनज्जी जलाल अज़मत और प्यार रखने वाला खुदा है। तू ही खुदाए कदूस बरहम खुदा है। तू ही कादिर मुतलक खुदा है। तेरे काम अजीब हैं, अज़ली बादशाह तेरी राहें दुरुस्त और राज सहन। हम अपने मसरूर दिलों से तेरी तारीफ और तेरी बंदगी करते रहे। खुदा यीशु मसीह खुदा तू हल मसाइल है, मसलों को जानता बर वक्त मदद करता है। खुदा तू अल्फा मेगा अव्वल आखिर इब्तिदा इंतहा है। इंसानी तारीख का खुदा है, तू नई मखलूक का खुदा है। तू सारे जहान का मुनसफ है। तू अपनी मुट्ठी खोलता और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। कादिर मुतलक खुदा तू उठता है और तेरे दुश्मन प्रगंदा होते हैं और वो भी जो
तुझसे कीना रखते हैं, बात करते हैं, इसलिए कि तू कवि और कादिर खुदावंद है। तेरा कलाम जिंदा और मुअस्सर है, जो दोधारी तलवार से ज़्यादा तेज और जो जान रूह और बंद गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों को, इरादों को जानता है। खुदावंद आज का कलाम हमारे लिए बाइस से बरकत हो, हमारी जिंदगियों के लिए हो, हमारी जिंदगियों की ताजगी के लिए हो। खुदा उस्मानी बाप तेरे बंदा के लिए दुआ करता हूँ, वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह उसे एकदम छुए। खुदा तेरा पाक उसमें होकर बोले, ऐसे अल्फाज अता कर, ऐसी हिकमत अता कर, ताकि तेरा कलाम जो है हमारे लिए बाइस से बरकत हो और हम तुझ में तरक्की करते जाए। खुदा उस्मानी बाप और एकदम हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। खुदा उस्मानी बाप, ऐ खुदा उस्मानी बाप, और जो कुछ मांगना भूल जाऊँ वो भी अता कर। ये दुआ मांगते हैं तेरे जलाली कदूस अपने नाम से, आमीन। और खुदा के हुजूर अपना मुंह नहीं खोलता, बल्कि फरमाता है कि खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने लिया। मेरे अजीजों, बहुत दफा हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम माशी बदहाली का शिकार होते हैं, हमारे पास नौकरी नहीं होती, हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हम दूसरे तरफ चले जाते हैं, हम दूसरे देवी देवताओं के पास चले जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो खुदा का डर जिसमें बरकत है, वो खुदा का डर जिससे जिंदगी आती है, वो खुदा का डर जिसमें हमेशा की जिंदगी है, उससे हम दूर चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं अय्यूब की जिंदगी में कि वो खुदा से लिपटा रहता है, वो खुदा की मोहब्बत में गिरफ्तार रहता है और खुदा उसे बरकत देता है। अय्यूब खुदा से दूर नहीं हुआ, लेकिन एक और शर्त, वो दूसरा तरीका जिससे इब्लीस चाहता है कि इंसान खुदा से दूर हो जाए, और वो खुदा से कहता है कि खुदा तूने इब्लीस उससे कहता है कि खुदावंद अब तू मुझे इख्तियार दे कि मैं उसके जिस्म को छू लूं, ताकि उसे मैं तकलीफ दूं। दूसरा तरीका कि वो जिस्मानी तकलीफ देना चाहता है, जिस्मानी तौर पर बीमारियां, परेशानियां, दुखों से बीमारियों की तरफ इंसान को लाता है ताकि वो कमजोर हो, और जब वो करीबुल मर्द हो तो खुदा को छोड़ दे। और यहां पर हम देखते हैं कि जब उसको वो छूता है तो उसके सर से लेकर पांव तक उसको बहुत ज्यादा फोड़े निकल आते हैं, और सर से पांव तक वो उनको खुजाने के लिए ठीकरी का इस्तेमाल करता है। लेकिन उसकी बीवी जो उसकी मददगार है, वो भी खुदा का इनकार कर देती है और कहती है कि तू अपने खुदा का इनकार कर दे और मर जा, यानी कि अपने आप से खुदा को छोड़ दे और खुदा के हुजूर इनकारी हो जा, मुनकर हो जा। लेकिन खुदा का बंदा जो खुदा की मोहब्बत में गिरफ्तार है, वो कहता है कि क्या हम सिर्फ खुदा से सुख ही पाएं? दुख भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जैसे मसीह यीशु फरमाते हैं लूका के इंजील में कि अगर कोई शख्स मेरे साथ आना चाहता है तो अपनी सलीब को उठा। दुखों वाली जिंदगी जिसमें तकलीफें हैं, जिसमें परेशानियां हैं, जिसमें हमेशा के लिए रोना है, लेकिन जैसे ही हम मसीह का दामन थाम लेते हैं तो वही दुख खुशियों में तब्दील हो जाते हैं। और ये शख्स जिसे हम अय्यूब साबर के नाम से भी जानते हैं, ये खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाता है, अपने पैरहन को चाक कर लेता है और खुदा के हुजूर अपने होंठों को खोलता है और फरमाता है कि खुदावंद, मैं जानता हूं कि मेरा मुनज्जी जिंदा है जो मुझे एक दफा फिर उठा खड़ा करेगा। उसका ईमान जो है वो मसीह पर है, उसका ईमान जो है उस निजात दहिंदा पर है जो उनको निजात दे सकता है, और उसी के वसीला से वो जिंदगी पाते हैं। और खुदा जब अपने बंदा के ईमान को देखता है
جو کہ محبت سے بھرا ہے، خدا کے خوف میں وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، خدا کے خلاف اپنے ہونٹوں کو نہیں کھولتا، بلکہ خدا سے التجا کرتا ہے، اور خدا کا آسمان اپنے بندہ کے لیے کھول جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا سے نپٹ جاتے ہیں، مشکلات میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، جب ہم خدا سے لپٹے رہتے ہیں تو خدا اپنے آسمان کو ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح جس طرح خدا نے اسرائیلیوں کی آواز سن کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسرائیلیوں کو آزاد کر دیا، جس طرح ہم نے پکارا اور مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی اور ہمیں آزاد کیا، اسی طرح خدا ایوب کو بلیس کرتا ہے، ایوب کو بابرکت کرتا ہے، ایوب کی زندگی میں ایک نیا کام ہوتا ہے اور ایوب کو خدا ڈبل برکت دیتا ہے، خدا اس کو بہت ساری بھیڑ بکریاں دیتا ہے، خدا اس کو دوبارہ اسی طرح سرفراز کرتا ہے، خدا اس کو اولاد دیتا ہے اور خدا اس کی عزت کو بحال کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں بھی اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اندر خدا کا خوف موجود ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی میں جو ہمیں مشکلات آتی ہیں، جو ہماری زندگی میں ہم کو گھیر لیتی ہیں، اور ایسی مشکلات جو ہمیں ایک ایسے رستے پر لے کر چلی جاتی ہیں جہاں پر موت ہے، جہاں پر زندگی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا رستہ جو مسیح کے مخالف ہے، اور آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں مسیح کے ساتھ لپٹا ہوا ہوں؟ کیا میں خدا کے خوف میں اس وقت موجود ہوں؟ کیا پاک روح کی آگ نے مجھے گھیر رکھا ہے؟ اور آج ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو خدا کے خوف میں لا سکتے ہیں۔ آج وقت ہے، اگر آپ خدا سے دور ہیں، اگر آپ خدا سے دور چلے گئے ہیں، تو آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا سے کہیں کہ خداوند، میں تیرا بندہ، میں تیری بندی، خداوند تیرے حضور آ گئی۔ خداوند، تو جو وعدوں کا سچا خدا ہے اور تجھی سے زندگی صادر ہوتی ہے، خداوند تیرے گھر میں اور تیرے خوف میں جب میں زندگی گزارتا ہوں، اے خداوند جب میں زندگی گزارتی ہوں تو خداوند تو آسمانی برکتیں مجھ پر نازل کرتا ہے، خداوند تو میرے اندر سے بیماری کو دور کرتا ہے، خدا باپ تو مجھے روٹی پانی سے بھر دیتا ہے، خدا باپ میرے آٹے کی مٹی کبھی خالی نہیں ہوتی، اور اے خداوند تو کبھی کسی کو بانجھ نہیں چھوڑتا، خدا باپ تیرے حضور جو سر جھک جاتے ہیں، تیرے خوف میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو ان کی عمر کو دراز کر دیتا ہے۔ یہوہ پاک خدا تو ان کے دشمنوں کو اے خداوند ان سے دور کر دیتا ہے، اور اے باپ تو ان پر اپنا کرم کرتا ہے، اور اے خداوند آج ہم اپنی درخواستیں، منتیں خدا باپ تیرے حضور رکھ دیتے ہیں، اور اے باپ التجا کرتے ہیں کہ تو اپنا آسمان کھول دے اور فضل کر، تاکہ اے خدا باپ ہم تیری محبت کو جانیں، اور اے باپ تیری محبت میں رہتے ہوئے، تیرے خوف میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں، تاکہ اے خدا باپ ہمارا ایمان بھی تیرے بندہ ایوب کی مانند ہو۔ اے خداوند اگر ہمیں کبھی تکلیف آتی ہے تو اس کے لیے بھی ہم تیرا شکر ادا کریں، اور اے خداوند ہمارے ہاتھ ہمیشہ تیری بارگاہ کی طرف شکر گزاری کے لیے بڑھے رہے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ شکر ادا کرتے ہیں آج کے مؤثر کلام کے لیے جو خداوند کے بندہ پاسٹر طارق خالد صاحب نے پیش کیا۔ یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں جو ہیں وہ آزاد ہوں گی، بہت سارے لوگ بابرکت ہوں گے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم پریئر ریکویسٹ میں جن لوگوں نے
नाम भेजे हैं उनको खुदा की हजूरी में रखेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ भगत शौकत फैमिली, आबाद भट्टी फैमिली, डॉक्टर रॉबर्ट जो रावलपिंडी से हैं, नैयर गौरी फैमिली जो कान्हा से है, उनको हम खुदा की हजूरी में रखेंगे। और इसी तरह मैं जिन लोगों का जिक्र करना चाहता हूँ वो बीमार हैं, जैसे दुआ करता हूँ बहन सुमेरा के लिए जिनका कामयाब ऑपरेशन हुआ, बाकी मांदा कमज़ोरी को भी हम खुदा की हजूरी में रखेंगे। और इस तरह बुजुर्गा बहन मरियम बीबी को, बहन एलिस बीबी को जो शुगर ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं, उनको भी खुदा की हजूरी में रखेंगे। लेमन जान साहब जो सियालकोट से हैं, उनको भी खुदा ने से तंदुरुस्ती दी, बाकी मांदा कमज़ोरी के लिए, लाचारी के लिए भी दुआ करेंगे। बहन सोनिया बीबी के लिए जो मुख्तलिफ परेशानियों मसाइल का शिकार हैं, भाई शाहर के लिए, उसके जबड़े के लिए हम दुआ करेंगे कि खुदा अपना रहम, अपना फजल डेले। भाई साजिद जो नशा की लानत में हैं, उनको भी हम खुदा की हजूरी में रखेंगे। और भाई जो है वो जॉर्ज की बहन के लिए भी जो है वो खुसूसी तौर पर दुआ करेंगे। तो अभी हम सब झुकेंगे और जितने भी खादमीन हैं वो अपनी जगह पे खड़े होंगे मेरे साथ, और हम मिलकर इन तमाम लोगों को खुदा की हजूरी में रखेंगे। बुजुर्ग आसमानी खुदा को जो मेहरबान अजली अपने खुदा है, तेरी हजूरी में सरबसूद है, इसमें रिक्वेस्ट को तेरी हजूरी में रखते हैं मेरे खुदा। और खास तौर पर इन फैमिलियों को मेरे खुदा तेरी हजूरी में रखते हैं जिनके नाम दिए गए हैं। डॉक्टर रॉबर्ट फैमिली है मेरे खुदा, फैमिली, पास्टर शौकत फैमिली, आबाद भट्टी भाई, पास्टर परवेज के लिए, इसकी सारी कमजोरी लाचारी के लिए हम दुआ करेंगे। इनके सारे हालात तेरे सबसे तब्दील हो जाएगा। जो भी घर में परेशानियां हैं तेरे सबसे जाते हैं, और इस घर पे जमीन तेरे पाकों की बात जाते हैं, तेरे पाक फरिश्तों की बात जाते हैं, ताकि अगर खुदा तेरे घरों में से तमाम तकलीफ तेरे यीशु नाम से चला जाए। और इसी तरह मेरे खुदा तेरे बीमारों को, मेरे खुदा तेरे सुनाना के लिए, मेरे खुदा तेरे शुक्रगुजारी करते हैं। एक कामयाब ऑपरेशन किया ताकि माता कमजोरी लाचारी तेरे यीशु नाम से जाते हैं। बड़े बहन मरियम बीबी को, बुजुर्ग बहन एलिस बीबी को मेरा खुदा छुए और सारी शुगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाते हैं। नाम और जो है भाई स्वागत करते जो कशाफी हालत में मुब्तला है, तेरे यीशु सामने सारी हालत जो है जिंदगी में से जाती है। शाम को तेरा शिफा वाला हाथ सारी जबड़े की प्रॉब्लम तेरे यीशु जाती है। सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी होगी। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज माफ करते हैं हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। तेरी बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। मास्टर साहब जो हैं वो फरमान बरकरार है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराफत अब से लेकर हमेशा तक तमाम मसीह मोमिनीन के साथ हो। खुदा बाप तो अपना आसमान खोलकर सबको बरकतों से नवाज, मसीह खुदा उनके वसीला से आमीन। यीशु में आपकी सलामती हो।
میں نہایت شکر گزار ہوں کہ آج خدا نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں گریس ٹی وی پر آ کر کلام کی خدمت کر سکوں، اور میں شکر گزار ہوں گریس ٹی وی کے چیئرمین بھائی عارف جاوید کھوکھر صاحب کے لیے، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں خدا کے کلام کی خدمت کروں اور ان کی خدمت کے بارے میں جان سکوں۔ خدا ان کا شکر ہے کہ اپنا بندہ، خدا کا بندہ اپنی مائنورٹیز کے لیے، ان کے حقوق کے لیے جہاں جنگ کر رہا ہے، وہیں پر ان کے لیے دعائیں بھی کی جاتی ہیں، کلام کی خدمت بھی کی جاتی ہے، اور بہت سے لوگ اس کلام کے وسیلہ سے زندگی پاتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا اپنے بندہ کو، گریس ٹی وی کو اور اس کی ٹیم کو بہت زیادہ برکت دے، تاکہ اسی طرح مائنورٹیز کے حقوق کے لیے اور ان کے حل کے لیے، اگر کوئی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے بھی بندہ کام کرے، اور خدا کا کلام اور خدا کے نام کو ہمیشہ جلال ملتا رہے، مسیح خدا ان کے وسیلہ سے، آمین۔